Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we shall discuss NTA need based test number 91 chemistry paper. Let's try to analyze how the test paper was and judge as to what score can be considered a good score in this test paper. Let's begin. The first question we have the IUPAC name of this compound. So this is very simple. You can do the numbering from left or right. You get the position of chloro group as 2. So the name would be 2-chloropropane. 2-chloropropane that we can see in the first option. First question ka answer A. Second question, identify the correct statement. Lead forms compounds in +2 oxidation state due to inert pair effect. This is correct. Lead can show two oxidation states, +2 as well as +4, but the stability of +2 is more than that of +4. And the reason responsible for that is inert pair effect. Lead के जो NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्ट होते जाते हैं, ठीक है. लेड में 6s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स केमिकली इनर्ट हो जाते हैं और ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. So this first statement itself is correct and the answer should be A, although you can judge the remaining statements also. All halogens can form only negative oxidation states. That's not correct. Chlorine, bromine, iodine can show positive oxidation states also. Catenation property increases from boron to oxygen. That also is incorrect. Although if we move from boron to carbon, the property of catenation increases, but from moving from carbon to nitrogen and then to oxygen, the property of catenation decreases. Oxygen's oxidation state is -1 is ozonides. This is also wrong. Ozonide is O3 minus, an unstable anion formed from ozone, and the oxidation state in ozonide is -1/3. So B, C, D are wrong. First option is correct. Coming to the third question, rank the following compounds in increasing order of their acidity. So we have to look at the structure of these compounds. The first compound, 3-fluorobutanoic acid. So this is 3-fluorobutanoic acid. 3-chlorobutanoic acid. 2-fluorobutanoic acid. The closer the electron withdrawing group is to the functional group COOH, stronger is the acid. So you can see in the third compound, 2-fluorobutanoic acid, fluorine group is the nearest, fluorine atom is the nearest to the COOH group, and fluorine is an electron withdrawing atom and will increase the acidic strength of the compound. 4-chlorobutanoic acid has the chlorine group attached at the corner of the carbon chain. So you can see that the third compound is the strongest acid, right? And the fourth compound should be the weakest acid. इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम अटैच्ड नहीं है. देन 4 सबसे पीछे होना चाहिए और 3 सबसे आगे होना चाहिए. इफ वी सिंपली लुक एट दिस ऑब्जर्वेशन ओनली, then we can mark the answer as option D. Remaining order is also correct in the option D. You can very well check it, right? Coming to the fourth question, pretty straightforward question. Sodium crystallizes in BCC crystal, magnesium crystallizes in FCC crystal. Number of sodium and magnesium atoms in per unit cell of the respective crystal is. तो BCC यूनिट सेल के अंदर 2 एटम्स होंगे, 2 सोडियम एटम्स, और FCC यूनिट सेल में 4 मैग्नीशियम एटम्स per unit cell. So the answer is 2 and 4, fourth option. Coming to the fifth question, which acid makes iron passive? Passive means unreactive. तो इसमें आपको थोड़ा फैक्ट्स पता होने चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बी है. नाइट्रिक एसिड
is an oxidizing agent and it first oxidizes iron to ferric oxide. A layer of ferric oxide formed over iron metal prevents the further oxidation of iron. It protects the iron in the bulk from getting oxidized. तो Fe2O3 की लेयर एक तरह से आयरन को प्रोटेक्ट कर रही है फर्दर ऑक्सीडेशन से, prevents the further oxidation of iron. Hence the iron becomes passive to HNO3, unreactive with HNO3 after the layer of Fe2O3 has been formed over iron. So fifth question का आंसर है B. Coming to sixth question, an element which occurs in the second short period has an outer electronic configuration S2P1. What is the formula and acid base character of its oxide? सेकेंड शॉर्ट पीरियड का मतलब है थर्ड पीरियड, ये हमें जज करना आना चाहिए. फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स ईच, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स ईच होते हैं और सिक्स्थ एंड सेवन्थ में 32 एलिमेंट्स ईच होते हैं. तो ये जो सेकेंड और थर्ड पीरियड हैं ये शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं और इनमें से भी जो सेकेंड शॉर्ट पीरियड है वो थर्ड पीरियड है. दैट मीन्स दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 3s2 3p1 and this configuration corresponds to aluminium. So we are talking about aluminium metal which shows +3 oxidation state and the formula of its oxide would be Al2O3. And about Al2O3 you should be very well knowing that Al2O3 is amphoteric. Aluminium oxide is amphoteric. It can react with sodium hydroxide also to form sodium aluminate and hydrogen gas, and also react with HCl to form AlCl3 and again hydrogen gas. Right, so it is capable of reacting with both acid and base, which makes it amphoteric. Sixth question का answer C. Coming to seventh question, products obtained when benzyl phenyl ether is heated with HI in the mole ratio 1:1. So we have mole ratio of 1:1. What is benzyl phenyl ether? This is benzyl group, this is phenyl group, and we are reacting with it with HI. So first of all, protonation of the ether group will take place. And then there would be the attack of a nucleophile. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बेंजाइल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, मोर सूटेबल फॉर SN रिएक्शन. तो यहाँ पर आयोडाइड आयन अटैक करेगा, इट वुड बी एन SN2 रिएक्शन और फिनॉल अलग हो जाएगा. तो हमें मिलेगा बेंजाइल आयोडाइड एंड फिनॉल. फिनॉल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. फिनॉल एंड बेंजाइल आयोडाइड 1 and 3. वी शुड मार्क ऑप्शन A. कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट Z. ठीक है, सबसे पहले आप देखें जो पहली वाली रिएक्शन है ये तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है. ये प्राइमरी अमीन्स के लिए टेस्ट भी होता है. तो Y जो बनेगा वो एक आइसोसाइनाइड बनेगा और फिर उस आइसोसाइनाइड की हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. आइसोसाइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस करने से आइसोसाइनाइड अमीन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड एक ही बात है. तो जो कंपाउंड Z हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे
वो एनिलीन ही है। ऑब्जर्व करिए कि जो हमने कंपाउंड बिगिनिंग में लिया था वही अपन को एंड ऑफ द सीक्वेंस में भी मिल गया है। एनिलीन से स्टार्ट किए थे और वापस एनिलीन ही मिल रहा है। 8th का आंसर ए। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, phenol reacts with bromine and carbon disulfide at low temperature. लो टेम्परेचर पर रिएक्शन रेट थोड़ा स्लो रहेगा। कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और इसमें फिनॉल की रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। ट्राई ब्रोमो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ऑर्थो एंड पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। OH group is an ortho-para directing group. So orthobromophenol and para-bromophenol. These are the two products that we are going to obtain. 9th question का answer B. Coming to 10th question, equation of state corresponding to 8 gram of O2. तो अगर आप options पर नज़र डालें तो यहाँ पर ideal gas equation use में लाई गई है, which is PV is equal to nRT. So this question is essentially about finding the moles of oxygen. मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास 32 ग्राम्स पर मोल। ऑक्सीजन गैस के मोल्स आ रहे हैं 0.25, तो PV इज इक्वल टू 0.25 RT ऐसा लिखा जा सकता है आफ्टर हैविंग इवेल्युएटेड द मोल्स। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। प्रिटी सिंपल क्वेश्चन। कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर strongly in excess of air so that the volatile impurities are removed and the ore is changed to oxide. ore को उसके ऑक्साइड में बदलना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो वो जिंक ऑक्साइड में बदल गया और साथ साथ बनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि एस्केप कर जाएगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। बाद में हम जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। पहले अपन ने सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला, ये है रोस्टिंग। कमिंग टू 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन्वॉल्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप ऑब्जर्व करिए कि इन सारे ही ट्रांजिशंस में एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि एनायन से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर है एज कंपेयर टू रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। नेगेटिव चार्ज में से नेगेटिव चार्ज निकालना ईजियर है, न्यूट्रल एटम में से नेगेटिव चार्ज रिमूव करना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और भी डिफ़िकल्ट होता जाएगा, क्योंकि मेटल आयन का साइज़ छोटा होता जाएगा। द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल हैव टू बी पुल्ड फ्रॉम क्लोजर टू द न्यूक्लियस अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। आपको ये भी बात पता है कि IE3 इज़ ग्रेटर देन IE2 विच इज़ मच ग्रेटर देन IE1। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती ही जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी थर्ड प्रोसेस IE3 में लगेगी, जो कि 4th ऑप्शन में नज़र आ रही है। फर्स्ट ऑप्शन में एनर्जी कम लगेगी क्योंकि एनायन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना रिलेटिवली आसान है, न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है, कैटायन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, और हाईली चार्ज कैटायन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। कमिंग टू द 13th क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेस। ठीक है, अगर एक्सेस नहीं होता, अगर ये 1:1 के रेशियो में होते तो यहाँ पर सिंपली एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होती, बनता Na2SO4 प्लस CuS2O3 कॉपर थायोसल्फेट। लेकिन अगर अपने पास सोडियम थायोसल्फेट और ज़्यादा अमाउंट में हो, देन वी गेट अ redox reaction Cu2S2O3 प्लस S4O6 2 माइनस Na2S4O6। ठीक है, और अगर अपने पास इससे भी ज़्यादा थायोसल्फेट आयंस अवेलेबल हों
राइट। इससे भी ज़्यादा थायोसल्फेट आयंस अगर अपने पास अवेलेबल हों तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा Cu6S2O4 whole 5 4 minus. So this would be the final product if we are using excess of sodium thiosulfate. तो ये रिएक्शन अगर अपन को पता हो तभी अपन इक्वेशन कर पाएंगे, अदरवाइज इसको छोड़ने में ही भलाई है। 14th क्वेश्चन में हमें बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। तो सबसे पहले इनको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करें। इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी एल्कीन की स्टेबिलिटी से जज की जाएगी। यूजुअली कीटो फॉर्म डोमिनेट करता है इनॉल फॉर्म के ऊपर, लेकिन हमें इन दोनों कंपाउंड्स की इनॉल फॉर्म्स ही आपस में कंपेयर करने हैं, और उनका कंपैरिजन बेसिकली इस डबल बॉन्ड के अबाउट जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका कंपैरिजन है। अगर अपन एसीटोन का इनॉल फॉर्म देखें तो उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, और अगर अपन साइक्लोहेक्सेनोन का इनॉल फॉर्म देखें तो वहाँ पर डबल बॉन्ड के अबाउट 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं, ठीक है ना। और 4 अल्फा हाइड्रोजन होने से ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं एल्कीन भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो साइक्लोहेक्सेनोन का इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। आंसर सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। कमिंग टू 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर डाइज जो होती हैं कलर चेंज करने में काम आने वाले ऑब्जेक्ट्स, उनको कलर इम्पार्ट करने का काम करता है क्रोमोफोर। और क्रोमोफोर यूजुअली एन डबल बॉन्ड एजो ग्रुप होता है, एनओ ग्रुप होता है, या NO2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप। इस तरह का फंक्शनल ग्रुप क्रोमोफोर का काम नहीं करता, ठीक है ना। तो जो क्रोमोफोर नहीं है वो अमीनो ग्रुप है, जैसे कि एनिलीन येलो में, एनिलीन येलो का जो येलो कलर है, एनिलीन येलो का जो येलो कलर है वो इस एन डबल बॉन्ड एन के कारण है। इस ग्रुप को अपन बोलेंगे क्रोमोफोर। और ये जो NH2 ग्रुप है इसको बोलेंगे ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम इस कंपाउंड को डाई बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एन डबल बॉन्ड एन उसको कलर इम्पार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 15th क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू 16th क्वेश्चन, if one strand of DNA has the sequence this, then the sequence of the complementary strand would be। तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पता होना चाहिए। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस थाइमीन है, और थाइमीन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस एडेनिन है। सिमिलरली साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस गुआनिन है, और गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस साइटोसिन है। तो ये जो सीक्वेंस है इसके लिए अगर अपन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लिखते जाएं, थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, तो फाइनली अपन को ये चीज़ मिलती है TAGC ATAC। और ये बात हमको थर्ड ऑप्शन में नज़र आ रही है। केयरफुली सारे ऑप्शंस देखें, अदरवाइज गलत ऑप्शन भी मार्क हो सकता है। 16th का आंसर सी होना चाहिए। कमिंग टू 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोएल्केन्स विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। टू एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट। तो इस नाइट्रो ग्रुप के पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है। सिमिलरली बी ऑप्शन में भी अल्फा हाइड्रोजन है, सी ऑप्शन में भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन डी ऑप्शन में अल्फा कार्बन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और ये वाला जो नाइट्रो एल्केन है ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। टॉटोमेरिज्म यूजुअली बेस कैटेलाइज्ड होता है
और बेस कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म के लिए एक एसिडिक हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है। कमिंग टू द 18th क्वेश्चन, कंपाउंड एक्स इज हाईली वोलेटाइल एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। हाईली वोलेटाइल है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इनसॉल्यूबल है वाटर में। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। यूजुअली आयनिक कंपाउंड्स को तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। और वाटर में यूजुअली कौन से कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं? आयनिक एंड पोलर कोवेलेंट। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कंसेप्ट अगर हम अप्लाई करें, वाटर खुद एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें चार्ज कंटेन करने वाले कंपाउंड्स ज़्यादा डिसॉल्व हो पाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। पर ये जो गिवन कंपाउंड है ये वाटर में इनसॉल्यूबल है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होना चाहिए विद नॉन पोलर बॉन्ड्स। दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग। तो 18th क्वेश्चन का आंसर होगा बी। कमिंग टू द 19th क्वेश्चन, अमोनिया फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स टेट्राअमीन कॉपर 2+ with copper ions in alkaline solution but not in acidic solution. The probable reason for this is, अगर हम ऑप्शंस पढ़ें तो सही ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है। एसिडिक सोल्यूशन में प्रोटॉन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ, और NH4+ आयन अमोनियम आयन बनता है। अमोनिया मॉलिक्यूल्स अवेलेबल ही नहीं रहते, और जब अमोनिया मॉलिक्यूल्स अवेलेबल ही नहीं हैं तो फिर ये कॉम्प्लेक्स आयन भी नहीं बन पाएगा। अमोनिया खुद अपने आप में एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, एक ल्यूइस बेस भी है। एसिडिक मीडियम में जब उसको प्रोटॉन अवेलेबल है तो वह NH4+ में डेफिनेटली कन्वर्ट होगा, और अगर एक बार वो NH4+ बन गया तो फिर कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म नहीं हो पाएगा। 19th का आंसर बी। कमिंग टू 20th क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये एक फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन है, और यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो एलाइलिक पोजीशन पर बनेगा। फ्री रेडिकल जो एलाइलिक पोजीशन पर बन रहा है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी लिखें। एक और फ्री रेडिकल बन सकता है दूसरे वाले एलाइलिक पोजीशन पर, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखा तो कुछ इस तरह का आया। तो इन चारों फ्री रेडिकल्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ये फर्स्ट वाला फ्री रेडिकल है, क्योंकि ये 3 डिग्री एलाइलिक रेडिकल है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा है। सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसी वाले फ्री रेडिकल में आ रहा है, और इसी के थ्रू अपन को अब ब्रोमिनेशन कराना होगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का होगा, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहा है। कमिंग टू 21st क्वेश्चन, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम और सराउंडिंग्स को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हुए कराई जाती है, और अगर सिस्टम और सराउंडिंग्स इक्विलिब्रियम में मेंटेन है तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स वो 0 होगा। प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम पर है तो फिर डेल्टा एस टोटल 0, फोर्थ ऑप्शन। कमिंग टू 22nd क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स लिस्टेड बिलो, the number of metals which show photoelectric effect when light of 300 nanometer wavelength falls on the metal is। तो जो फोटोन की एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड आउट। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इसके लिए फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ। hc की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर आती है। इसको 300 नैनोमीटर से डिवाइड करें तो ये वैल्यू 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। और अब हमें ऐसे वर्क फंक्शंस वाले मेटल सेलेक्ट करने हैं जिनके लिए वर्क फंक्शन 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम हो। तो वो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर नहीं है, सिल्वर नहीं है, आयरन नहीं है, प्लैटिनम नहीं है, टंगस्टन नहीं है। तो ये 4 मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने में सफल रहेंगे। कमिंग टू 23rd क्वेश्चन, यहाँ पर एक स्पायरो कंपाउंड का नाम लिखना है। स्पायरो कंपाउंड की नेमिंग में जो नंबरिंग होती है एटम्स की
वो स्मॉलर कार्बन चेन से स्टार्ट की जाती है, और ये जंक्शन वाले कार्बन को कभी भी फर्स्ट पोजीशन नहीं दी जाती। स्मॉलर चेन से स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूअस वे में नंबरिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि कंपाउंड में टोटल 8 कार्बन एटम्स हैं। उसके बाद इस 8 कार्बन एटम के कोरिस्पॉन्डिंग जो एल्केन का नाम होता है वो है ऑक्टेन। फ्रंट में अपन को स्पायरो वर्ड भी लगाना होता है स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग करते समय, और फिर अपन को देखना होता है कि जो रिंग है उनके अंदर कितने कितने कार्बन एटम्स और आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द जंक्शन कार्बन। तो ये स्मॉलर रिंग में 3 कार्बन एटम्स और आ रहे हैं और लार्जर रिंग में 4 कार्बन और आ रहे हैं। इस नंबर को अपन एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 3.4, 3 and 4 एक्स्ट्रा कार्बन अपार्ट फ्रॉम द जंक्शन कार्बन। ये इस कंपाउंड का नाम होगा। 23rd क्वेश्चन का आंसर ए। ऑल्दो स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग, बायसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, उस लिहाज से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन। तो एटमॉस्फेयर के वेरियस रीजन्स होते हैं, वेरियस लेयर्स होती हैं डिफरेंट हाइट पर। सबसे नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर, जो कि सी लेवल से लेकर लगभग 10 किलोमीटर की हाइट तक है। 10 से 50 किलोमीटर की हाइट के बीच में है स्ट्रेटोस्फियर, और इसी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस प्रेजेंट है। इसके ऊपर है मीसोस्फियर, जो कि 50 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर तक है, और उसके ऊपर है थर्मोस्फियर। इस तरह की लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है, ये बात हमें एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए। 24th का आंसर डी। 25th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन में आपको फाइनल प्रोडक्ट Z आइडेंटिफाई करना है। तो पहली वाली रिएक्शन में NaETOH ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये साइनाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देगा। फिर अमीन की रिएक्शन अपन ने कराई HNO2 से एक्वस मीडियम में, इसमें डाइजोनियम आयन बनेगा। फर्दर वो N2 रिलीज करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन फिर वाटर से रिएक्ट करेगा, इथेनॉल बनेगा। उसके बाद हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला रहे हैं। ऐसा होने पर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एसिटिक एसिड हमें मिल जाएगा। दिस वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट Z। 25th का आंसर ए। 26th क्वेश्चन, विच गैस विल बी एड्जॉर्ब्ड ऑन अ सॉलिड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ग्रेटर एक्सटेंट तक एड्जॉर्ब होने के लिए स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस एस्टैब्लिश होने चाहिए, ठीक है ना। गैस को एक तरह से सॉलिड फेज में ट्रांसफॉर्म होना है। अगर हम ऑप्शंस पढ़ें तो हमको क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है मोस्ट इजीली लिक्विफाइबल गैस। और जो गैस सबसे ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई होती है, इसका मतलब it is capable of establishing stronger intermolecular attractions। वो stronger intermolecular attractions establish करने में कैपेबल है, और इसी वजह से वो सॉलिड पर एड्जॉर्ब हो पाएगा। 26th क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ठीक है। कमिंग टू 27th क्वेश्चन, अगेन ये रिएक्शन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। पिपेरिडीन एक बेस होता है और अपने पास एक मैलोनिक एस्टर है, मैलोनिक एसिड का एस्टर। ये पिपेरिडीन जो बेस है, इस मैलोनिक एस्टर का अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एक तरह से इनोलेट आयन बनेगा। अब ये जो इनोलेट आयन है, ये ग्लूकोनिक एसिड पर अटैक करेगा। अपने पास जो ये कंपाउंड है, ये ग्लूकोनिक एसिड है, ठीक है। बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड का भी H+ एब्स्ट्रैक्ट हो चुका होगा, और उसके बाद ये जो इनोलेट आयन है,
ये एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करेगा। बाद में जब प्रोटोनेशन हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, जिसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एस्टर ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और फिर जब हम इसको हीट करेंगे एसिडिक मीडियम में, हीटिंग भी इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो एक तो इस मैलोनिक एसिड में से CO2 का लॉस होगा, दूसरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, OH और H के लॉस से इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, CH डबल बॉन्ड C, COH COH, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस एंड वाटर का लॉस। इस तरह का एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये वाला कंपाउंड हमें डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन में ही नज़र आ रहा है। ये एक नेम्ड रिएक्शन है और उसका नाम है नोवेल-नेगल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ काइंड ऑफ गोइंग आउट ऑफ सिलेबस, थोड़ा थोड़ा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन जैसी प्रोसेस है इसमें। 28 क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्लेनर। इसके लिए तो सिंपली ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है। NF3 का शेप ट्रायगोनल पिरामिडल, NCl3 का शेप भी वैसा ही, PH3 का शेप भी कुछ वैसा ही, ऑल द बॉन्ड एंगल्स अलग हैं, लेकिन जो BF3 है इसमें बोरॉन पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इसका शेप है ट्रायगोनल प्लेनर। All 4 atoms lie in the same plane or 4 nuclei lie in the same plane. 28th का आंसर D. Coming to 29th question, the type of bond that is most important in maintaining the secondary structure of a protein is. तो ये भी अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अपन को पता होना चाहिए कि प्रोटीन के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक पेप्टाइड बॉन्ड का NH ग्रुप और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड का C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश होती है, जो कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है। 29th का आंसर B। 30th क्वेश्चन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस आर यूजुअली परफॉर्म्ड इन न्यूट्रल और माइल्डली एल्कलाइन और वीकली एसिडिक सॉल्यूशंस। Which statement is not valid for this observation? In strong alkaline solution, I2 is disproportionate to I minus and IO minus. ये factually correct है, ठीक है। strongly alkaline medium में ऐसा होता है। In strongly acidic solution, starch used to detect the end point tends to hydrolyze or decompose. ये fact भी सही है। I minus produced during titration tends to be oxidized by dissolved oxygen in acidic medium. This fact is also correct. Reducing power of reducing agent is increased in strongly acidic medium. Reducing agent वो है जो I2 को reduce कर रहा है I minus में। Usually iodimetric titrations में हम S2O minus thiosulfate ion use करते हैं, जो कि reducing agent का काम करता है, और इसकी रिड्यूसिंग पावर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में बढ़ जाती है। ये बात सही नहीं है। एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट की रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज नहीं होती है इस टाइट्रेशन में। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अदरवाइज अगर आपको फैक्ट्स पता नहीं हो तो ये क्वेश्चन छोड़ना ही बेटर है। 30th क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू 31st क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सो हेयर वी हैव टू थिंक अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट। Aluminium shows only +3 oxidation state, gallium also only +3, indium shows +3 and +1 both, thallium predominantly shows +1,
and in some compounds it forms +3 state. Again, this observation is due to the inert pair effect. Two electrons of the s orbital are becoming inert. तो +1 स्टेट की स्टेबिलिटी थैलियम में सबसे ज़्यादा होगी और एल्यूमिनियम में सबसे कम होगी. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. कमिंग टू 32nd क्वेश्चन. Dissolution of 1.5 gram of non-volatile solute, molecular weight is given in 250 gram of solvent, reduces its freezing point by 0.01 degree Celsius. Find the molar depression constant of the solvent. So here we have to apply the formula. Delta TF is equal to KF times molality. Then KF is delta TF upon molality. Substitute करें values. Delta TF is 0.01 डिग्री सेल्सियस में लिखें या केल्विन में एक ही बात है. Molality moles upon kilograms of solvent. 1.5 grams of solute जिसका मोलर मास है 60 ग्राम्स पर मोल, और इसको डिवाइड कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट से, जिसको अपन को लेना है किलोग्राम्स में. यहाँ से अगर अपन प्रोसीड करें तो ये बन जाता है 0.15 अपॉन 1.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल. राइट. और ये वैल्यू आ रही है 0.01 केल्विन किलोग्राम पर मोल. 0.1 सही सही कैलकुलेशन करें तो ये वैल्यू आती है 0.1, विच कैन बी क्लियरली सीन इन ऑप्शन डी. कैलकुलेशन ध्यान से करनी होगी, अदरवाइज गलत ऑप्शन भी मार्क हो सकता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +5. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है. Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है. Cl3 माइनस में +5 है. आप देख सकते हैं अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट x माना जाए, ऑक्सीजन आइटम्स का -2 माना जाए, इन सब का सम -1 के इक्वेट किया जाए तो x की वैल्यू +5 आ रही है. C वाले केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और D में +7 है. 33rd का आंसर B. कमिंग टू 34th क्वेश्चन. Which of the following is most easily hydrolyzed with aqueous KOH solution? Aqueous KOH solution के साथ रिएक्शन करानी है. आप देख सकते हैं सबके सब एल्काइल एलाइड्स हैं. ठीक है. इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्काइल एलाइड कौन है वो अपन को देखना है. फर्स्ट वाला तो मिथाइल क्लोराइड है, हाईली रिएक्टिव है. सेकेंड वाला बेंजाइल क्लोराइड है, वो भी हाईली रिएक्टिव है. थर्ड वाला विनाइल क्लोराइड है, ये एसएन रिएक्शन नहीं देगा. और फोर्थ वाला जो है वो एक 2 डिग्री बेंजाइल क्लोराइड है. बेंजाइल क्लोराइड्स की रिएक्टिविटी एसएन रिएक्शंस में वैसे भी ज़्यादा होती है, और 2 डिग्री बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा होगी. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में अपन बेसिकली कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे, और सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन चारों केसेस में फोर्थ वाले केस में ही बन रहा है. वी आर गेटिंग अ 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन विच इज़ रिलेटिवली स्टेबल. हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है. कमिंग टू 35th क्वेश्चन. A mixture of 1 gram each of sodium carbonate and sodium bicarbonate is reacted with 1 normal HCl. Quantity of 1 molar HCl required to react completely with the above mixture is. HCl के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल होते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी होता है n फैक्टर टाइम्स मोलैरिटी, और HCl जैसे मोनोप्रोटिक एसिड्स के लिए n फैक्टर 1 होता है. तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर है नहीं. Na2CO3 के 1 मोल को कंज्यूम करने के लिए 2 मोल HCl रिक्वायर्ड रहेगा. यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के 1 मोल को कंज्यूम करने के लिए 1 मोल HCl ही चाहिए रहेगा. यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे NaCl प्लस H2O प्लस CO2. दोनों सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट शुरू में 1 ग्राम लिए गए हैं. इनके मोलर मासेस हैं 106 ग्राम्स पर मोल एंड 84 ग्राम्स पर मोल रिस्पेक्टिवली.
आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले रिएक्शन में जितने मोल्स Na2CO3 के रहेंगे, HCl के मोल्स उसके डबल रिक्वायर्ड होंगे, और सेकेंड वाली रिएक्शन में जितने मोल्स HCO3 के रहेंगे, HCl के मोल्स भी उतने ही रिक्वायर्ड होंगे। तो टोटल मोल्स ऑफ HCl जो रिक्वायर्ड होगा वो है 2 टाइम्स 1/106 प्लस 1/84। इतने मोल्स HCl के रिक्वायर्ड होंगे, और मोल्स को लिख सकते हैं मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम ही फाइंड करना है। मोलैरिटी है 0.1 मोलर, वॉल्यूम ऑफ HCl यहाँ से हमको फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ HCl अगर हम यहाँ से फाइंड करने जाएंगे तो 1/53 प्लस 1/84 टाइम्स 10, ये लीटर्स में आएगा। ये वैल्यू जब आप एवेल्यूएट करोगे तो 0.308 लीटर्स आती है, और इसको मिलीलीटर में लिखें तो लगभग 308 मिलीलीटर के करीब ये वैल्यू आती है अपॉन कैलकुलेशन। ठीक है, आंसर वुड बी डी। कमिंग टू 36th क्वेश्चन, विच इज़ द वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में वीकेस्ट कौन है? तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड्स तो केमिकल बॉन्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। केमिकल बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से तो डेफिनेटली ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड्स में इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, जो कि फेयरली वीकर होता है एज कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड्स। तो 36 का आंसर डी। 37th क्वेश्चन, कंपाउंड ए C7H8O, इसको अगर आप देखें तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है C6H5OCH3। ठीक है, इसका मतलब C6H5 जो फिनाइल ग्रुप है उसके ऊपर OCH3 भी लगा हो सकता है, या फिर फिनाइल ग्रुप के ऊपर OH और CH3 अलग अलग करके भी लगे हो सकते हैं, तब ये C6H4 बन जाएगा। अब अगर अपन ऑप्शंस आगे चलकर पढ़ें, मतलब स्टेटमेंट को आगे चलकर पढ़ें, इनसॉल्यूबल है वाटर में, डाइल्यूट HCl में और एक्वस NaHCO3 में, बट इट डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट NaOH। NaOH के साथ डिजॉल्व कर रहा है, मतलब इसमें एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। इस बात को सुनकर हमें समझ में आया है कि NaSol तो आंसर नहीं हो सकता, फिनॉल का ही ये कोई डेरिवेटिव है, क्योंकि फिनॉल ही डाइल्यूट NaOH में डिजॉल्व होता है। और जब इसको ब्रोमीन वाटर के साथ हीट करते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द कंपाउंड C7H5OBr3 रैपिडली। दैट मीन्स वी आर गेटिंग अ ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बट द कार्बन काउंट इज रिमेनिंग इंटैक्ट। इसका मतलब जो कार्बन ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है, वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर नहीं होगा, क्योंकि जब ब्रोमिनेशन करा है तो ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर लगेंगे, 3 ब्रोमीन लगे हैं। इसका मतलब जो मिथाइल ग्रुप है वो OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर नहीं है, वो मेटा पोजिशन पर है, इसीलिए वो ब्रोमिनेशन के लिए कोई पोजिशन ब्लॉक नहीं कर रहा है। So this is the final product that we are getting. The structure of the compound A is also obvious after this discussion. The answer should be C. Meta methyl phenol. ठीक है, या फिर अपन बोलें 3-methyl phenol. Coming to 38th question, rate constant for the reaction is given. Rate constant में तो जो units हैं वो minute inverse हैं, और minute inverse ये जो units हैं ये बता रहे हैं कि reaction फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमको ये बताना है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन 2 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड है तो H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लॉ कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से अपन को H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, जो कि हो जाएगा रेट अपॉन K। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, हमको रेट दिया हुआ है वो मोलर पर सेकेंड में दिया हुआ है,
ठीक है, और जो k दिया हुआ है वो पर मिनट में दिया हुआ है, 3 × 10⁻³ अपॉन 1 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। ये 60 का फैक्टर हमें यूज़ करना चाहिए, तभी हमारी क्वांटिटी में सेकेंड कैंसिल हो पाएगा। ठीक है, अब अगर अपने यहाँ से आगे बढ़ें, 60 × 2 × 10⁻⁴ अपॉन 3 × 10⁻³ मोलर, इसको एवेल्यूएट करते हैं। जब अपन इसको एवेल्यूएट करने जाएंगे तो ये वैल्यू फाइनली 4 मोलर आएगी। 4 मोलर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 39. The most stable radical among the following is: electron withdrawing groups destabilize the radical, electron releasing groups stabilize the free radical। क्योंकि फ्री रेडिकल अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, उसमें कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो NO2 जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स तो फ्री रेडिकल को डीस्टेबलाइज करेंगे। CO- भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, डीस्टेबलाइज करेगा। CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। O- जो ऑक्साइड आयन है, इसको भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग माना जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना चाहेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा टुवर्ड्स द फ्री रेडिकल। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा टुवर्ड्स द फ्री रेडिकल तो ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। O- ज़्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाता है एज कम्पेयर टू CH3 ग्रुप। आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। Coming to 42nd question. A heating coil is immersed in 100 gram sample of liquid water at 1 atmosphere and 100 degrees Celsius in a closed vessel. In this heating process, 60% of the liquid is converted to the gaseous form at a constant pressure of 1 atmosphere. Densities of liquid and gaseous water under these conditions are 1000 kilogram per meter cube and 0.6 kilogram per meter cube respectively. We have to find the magnitude of the work done. Don't worry about the sign, just worry about the magnitude of the work done. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट चेंज हो रहा है वो है H2O लिक्विड से H2O गैसियस, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है गैसियस स्टेट बनने पर, तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव क्वांटिटी हमें रिपोर्ट करनी है P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल तो 1 एटमॉस्फेयर है, जिसको अपन 10⁵ पास्कल बोल रहे हैं। डेल्टा V का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। 60% ऑफ द लिक्विड कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब 60 ग्राम H2O लिक्विड कन्वर्टेड टू H2O गैस। इसी 60 ग्राम का जो वॉल्यूम है वो फाइनल और इनिशियल अपन को फाइंड करना है। 60 ग्राम्स को पहले किलोग्राम से बदला। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें मास को डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। वाटर वेपर्स की डेंसिटी 0.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इनिशियली ये जो 60 ग्राम वाटर था, इसका कितना वॉल्यूम था, इसके लिए अपन को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर मैं ये 10⁵ का फैक्टर अंदर अकोमोडेट कर दूं तो ये क्वांटिटी बन जाती है 10⁵ का फैक्टर अगर अपन अंदर अकोमोडेट कर दें तो ये क्वांटिटी बन जाती है 10⁴ -6 जूल्स। ठीक है ना, 10⁵ से थ्रू आउट द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पर ये क्वांटिटी 10⁴ -6 आ रही है, जो कि हो जाएगी 9994 जूल्स। क्वाइट क्लियरली ये थर्ड ऑप्शन है। 42nd का आंसर C। कमिंग टू द 40th क्वेश्चन। यहाँ पर अपन को λm वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ C का ग्राफ बनाना है KCl के लिए। KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इस तरह के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए λm और √C का रिलेशन
आता है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। ठीक है, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और ना सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप नेगेटिव है माइनस ए। स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, ये अगर हम आइडेंटिफाई करने जाएं तो वो हमें सेकंड ऑप्शन में नज़र आएगी। ठीक है, तो 40th क्वेश्चन का आंसर बी। कमिंग टू 41st क्वेश्चन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the equilibrium constant for the reaction is expressed like this, where P is pressure and X is the extent of decomposition. Which one of the following statements is true? अगर अपन प्रेशर चेंज करेंगे तो X चेंज होगा, प्रेशर चेंज करेंगे तो X चेंज होगा, लेकिन Kp चेंज नहीं होगा, बिकॉज Kp चेंजेस ओनली ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब तक टेम्परेचर ना बदला जाए तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। प्रेशर चेंज करने से एक्स इस तरह से चेंज होगा कि ये ओवरऑल क्वांटिटी सेम बनी रहे, केपी की वैल्यू सेम आए। 41st क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है, कमिंग टू 43rd क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय दिस आयन आर। अब इस आयन में हम देख सकते हैं 3 तरह के लिगेंड्स हैं। अगर इनके अरेंजमेंट्स पर हम नज़र डालें तो एक अरेंजमेंट वो हो सकता है जिसमें हम सारे के सारे लाइक ग्रुप्स को सिस पोजीशन पर रखें, विसिनल पोजीशंस पर रखें, ऑल सिस ग्रुप्स, इसमें सारे ग्रुप्स विसिनल पोजीशन पर लगे हुए हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट्स। इस वाले स्ट्रक्चर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये आयन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण ये आयन और इसका जो मिरर इमेज है वो आपस में इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगा। इसमें अपन किन्हीं भी 2 ग्रुप्स को ऑपोजिट रख के बाकी 2 ग्रुप्स को विसिनल पोजीशंस पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मल्टीपल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बनाना पॉसिबल है। तो 43rd क्वेश्चन का आंसर सी। कमिंग टू 44th क्वेश्चन, अगेन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस। H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए इसमें से H प्लस रिमूव करें। H प्लस रिमूव करने पर बनेगा HPO4 2 माइनस, जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस है। 44th क्वेश्चन का आंसर सी। कमिंग टू 45th क्वेश्चन, चेन आइसोमर्स ऑफ C7H16। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे चाह रहा है कि हम 7 मेंबर्ड एल्केन्स में कितनी डिफरेंट कार्बन्स की चेन्स बन सकती हैं वो आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 मेंबर्ड चेन तो ऑब्वियसली बन सकती है एन हेप्टेन में। 6 मेंबर्ड चेन भी बन सकती है। 6 मेंबर्ड चेन में मल्टीपल पोजीशन आइसोमर्स बन जाएंगे। 5 मेंबर्ड चेन बनाना भी पॉसिबल है, इसमें भी मल्टीपल पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। 4 मेंबर्ड चेन बनाना भी पॉसिबल है, लेकिन 4 से कम मेंबर की चेन यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 7 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड चेन्स बनाना पॉसिबल है। इस वजह से C7H16 के 4 चेन आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट पेपर। आज का टेस्ट पेपर ओवरऑल एवरेज लेवल का पेपर लगा मुझे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चंस अनकॉमन थे, इसलिए स्कोर करना बहुत आसान नहीं रहेगा। आई विल से दैट इफ समवन इज स्कोरिंग इन एक्सेस ऑफ 155, दैट स्कोर कैन बी कंसिडर्ड वेरी गुड। लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको स्कोर करने का मौका मिलेगा। इस वजह से अगर आप 135 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो फिर ये बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। 135 से नीचे जाना
एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी टेस्ट पेपर के डिस्कशन में मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।